Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 8th chapter of class 3rd, which is about animals' food and feeding habits. Okay, see. So just as we need food to stay alive, animals also need food. We need food to get energy, to grow and to keep themselves healthy. Okay? Let us study about food and feeding habits of different animals. So today what they are saying कि जैसे हमें अलाइव रहने के लिए यानी कि जिंदा रहने के लिए एंड टू वर्क टू प्ले क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सिमिलर टू दैट ओनली एनिमल्स को भी क्या अलाइव रहने के लिए, वर्क करने के लिए, अपने लिए फूड सर्च करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट वो एनिमल्स क्या कर सके, उनको एनर्जी मिले, वो ग्रो करे एंड वो हेल्दी रहे. ओके, चलो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग द टॉपिक फूड. सी, animals eat different kinds of food. On the basis of food animals eat, they can be divided into 4 groups. So सभी animals different kinds of food को consume करते हैं and वो किस तरीके का food खाते हैं, इस behalf पर animals को हम 4 groups में divide करते हैं. That is herbivores, carnivores, omnivores and scavengers. Okay, so first of all we have to discuss about herbivores. What are herbivores students? वो animals जो grass eating है, यानी कि सब grass या जो plant लीव्स या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं. सो एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. दे आर आल्सो कॉल्ड प्लांट ईटर्स. उन्हें हम प्लांट ईटर्स भी कहते हैं. एग्जाम्पल, काउ, हॉर्सेस, गोट, शीप, जेब्रास, एलिफेंट्स, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवोर्स. Now next we come to carnivores. Carnivores वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, उन्हें पहले मारते हैं एंड उनके फ्लैश को खाते हैं. उन एनिमल्स को कार्निवोर्स और मीट ईटर्स भी कहा जाता है. सो द एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. दे आर आल्सो कॉल्ड फ्लैश ईटर्स. ओके, so what are the examples of flesh eaters? That is lion, tiger, crocodile, wolves and snake. ये सभी आपके carnivores के examples हैं. Now next we come to omnivores. The animals that eat both plant and flesh of other animals are called omnivores. अब वो animals जो दोनों ही चीज़ें खाते हैं, यानी कि plants भी खा सकते हैं और दूसरे animals का flesh भी खा सकते हैं, उन animals को omnivores कहा जाता है. Example, deer, dog, cat, crow, sparrow. These all are examples of omnivores. In fact, human beings, students, हम लोग भी क्या है, हम लोग भी omnivores category में ही included होते हैं. Next we come to scavengers. So animals that eat flesh of dead animals. अब वो animals जो already dead animals के flesh को खाते हैं, उन्हें scavengers कहा जाता है. Okay, scavengers क्या करते हैं? They help in keeping the environment clean. ये environment को clean रखने में help करते हैं and इसीलिए इनको हम nature's friend बोलते हैं. Okay, example vultures, eagle, hyenas, they all are the examples of scavengers. Now next we come to the topic which is feeding habits. So different animals eat different kinds of food. हर एक animal different kind of food को consume करता है. इनके mouth, jaw, teeth, इन सब की जो shape है वो depend करती है कि what type of food basically they eat. So let us learn about the feeding habits of some animals. अब कुछ animals के feeding habits को हम discuss करेंगे. Number 1, herbivores. Herbivores में cow, horses, buffalo, giraffes ये सब included है. I told you. Okay, and ये सब क्या खाते हैं? Plants को खाते हैं. So इन animals के जो teeth होते हैं वो flat and broad teeth होते हैं, जिसके through ये leaves को खा सकते हैं, grasses को खा पाते हैं. And इनके जो back teeth होते हैं वो काफ़ी strong होते हैं, so that ये उस food को properly chew कर सके. Next we come to what? Cow, buffalo and sheep. अब cow, buffalo and sheep पहले क्या करते हैं? अपने food को swallow करते हैं, यानी कि सिर्फ निकल जाते हैं without chewing, बिना चबाए. Then after some time क्या होता है? They bring it back to their mouth. उस swallowed food को वापस अपने mouth में लेकर आते हैं, फिर उसको वो for hours, काफ़ी घंटों तक उसको chew करते हैं and इसको बोला जाता है chewing the cud. Okay? And इन animals को हम ruminants भी कहते हैं, जो कि cud को chew करते हैं. Okay, now next we talk about carnivores. Carnivores, I told you, जो flesh eaters होते हैं, meat खाते हैं दूसरे animals का, like lion, foxes, tiger, leopard. Okay, अब इनके जो teeth है students काफ़ी sharp pointed होते हैं front teeth, so that ये उस flesh को tear कर सके. And इनके जो teeth grinding teeth होते हैं वो भी काफ़ी strong होते हैं. कहाँ? At the back of their mouth. इनके mouth के just पीछे, so that ये क्या कर सके, जो उन animals की bones है उन्हें easily crack कर सके. Okay, now some animals, सब कुछ animals है like crocodile and snake. ये क्या नहीं करते? They do not use their teeth to bite or chew the food. ये अपने टीथ का यूज़ नहीं करते अपने फूड को बाइट करने के लिए, अपने फूड को च्यू करने के लिए. ओके, ये अपने टीथ का यूज़ करते हैं अपने फूड को होल्ड करके एंड
पूरे के पूरे फूड को एज अ होल एक साथ ही क्या करते हैं, swallow यानी कि निगल जाते हैं, ठीक है। एंड ये एनिमल्स अपने माउथ को काफी वाइडली ओपन कर सकते हैं सो दैट ये काफी बड़े एनिमल को भी इजीली swallow कर सके। ओके, चलो। Now insects. So insects like bees, butterflies and mosquitoes have a long and thin sucking tube. जितने भी इंसेक्ट है स्टूडेंट्स, उनके पास एक सकिंग ट्यूब होती है, काफी लॉन्ग एंड थिन होती है, जिसके थ्रू ये अपने फूड को सक करते हैं अपने माउथ के अंदर। ओके, चलो। द निडल लाइक सकिंग ट्यूब, एक मॉस्किटो की, एक मच्छर की जो सकिंग ट्यूब होती है वो निडल जैसी होती है और उसको क्या कर जाता है, प्रोबोसिस कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज डॉग्स एंड कैट। डॉग्स एंड कैट्स अपनी टंग का यूज करते हैं क्या करने के लिए, वाटर, मिल्क, इन सब चीजों को लैप अप करने के लिए। ओके, कैट्स के पास पॉज होता है जिसके थ्रू ये अपने माइस जो होते हैं, चूहे, उनको चेस कर सकती है सॉफ्टली एंड साइलेंटली सो दैट माइस को पता भी ना चले। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, frogs. So frogs have long sticky tongue. अब frogs के पास एक काफी long sticky tongue होती है। Insects जो है वो sticky tongue पे क्या stuck यानी कि चिपक जाते हैं। And एक frog जैसे ही किसी insect को spot करता है वो अपने tongue को बाहर निकालता है and insect को काफी distance से ही catch कर लेता है with this long sticking tongue. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू जिराफ। जिराफ्स के पास स्टूडेंट्स दे हैव वेरी लॉन्ग नेक, इनकी जो नेक है काफ़ी लॉन्ग होती है एंड लॉन्ग नेक्स इन्हें हेल्प करती है क्या, जो काफ़ी बड़े बड़े टॉल ट्रीज के भी ब्रांचेस तक इजीली पहुंच जाते हैं एंड उनकी लीव्स को तोड़कर खा लेते हैं। ओके, एंड द लास्ट इज एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के पास क्या होती है, ट्रंक होती है, जो उनकी वो सूंड होती है वो काफ़ी लॉन्ग, दैट इज नोन एज ट्रंक। यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज द ट्रंक। ओके, सो द ट्रंक हेल्प देम टू ब्रेक ऑफ द ब्रांचेस एंड लीव्स एंड पुश देम इनटू देयर माउथ। सो ट्रंक उनको हेल्प करती है क्या, कि उन ब्रांचेस को क्या ब्रेक करके एंड लीव्स को ब्रेक करके उनको इजीली अपने माउथ के अंदर पुश कर सके। दे ऑल्सो यूज देयर ट्रंक टू सक अप वाटर एंड इसी ट्रंक का वो यूज करते हैं वाटर को भी सक करने के लिए। ओके, चलो। So the chapter is completed. I hope you all have understood the chapter very clearly. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.